ए टू बी, बी टू सी हमको कोई चीज़ भेजनी है, तो हाउ वी विल डू दैट कन्विंसिंग कि हाँ ये सारी चीज़ें अच्छी है, हमारे लिए ही है और हमारे हित के लिए। Hi, can you tell me your name and your company name? Yeah, so myself Abhishek Paliwal and my company name is Ila. Please provide a quick background on your company, including when it was founded, what it does, and where it is today in terms of traction, like product, customer, revenue. Also, talk about what inspired you to start this business. Okay, so we have started our company last year in 2024. So basically एक कंपटीशन के थ्रू इस कंपनी का बॉर्न हुआ और उसके बाद हम अभी स्टेज के ऊपर, प्रोटोटाइप स्टेज के ऊपर हैं। वहाँ पर अभी हमने 2 जगहों पर इंक्यूबेट हुए हैं। एक इन आवर ओन यूनिवर्सिटी, गणपत यूनिवर्सिटी, जहाँ पर हमने 2.5 का फंड रेज किया हुआ है। एंड ऑल्सो वी हैव इंक्यूबेटेड इन नाबार्ड असिस्टेड SDA यूनिवर्सिटी दांतीवाड़ा। Currently we are also thinking to work with KVKs for soil testing and stuff. What's your business about? Yeah, so we are agri-tech startup. So what we do is we basically focus on tier 2 and tier 3 cities and to uplift and empower farmers and villagers there. So under that, under our own company Elav, which is parent company, under that we are launching our first venture called Krusti. So it is a platform which will connect buyers, government and suppliers. So it will manage logistics, supply chain. It has features of you can apply government schemes where you not have to go to e-mitra portals or cyber cafes. Okay. What inspired you to start this startup? So basically we are 3 co-founders in our company. So we all are from a farmer's background only. So we know what problem we face on ground. So because of that only we started this. Okay. What's the vision for your startup? The main vision is to uplift farmers, tier 2, tier 3 cities, to income उनकी अच्छी हो, उनका जो भी रेवेन्यू है वो थोड़ा बढ़े, तो उसकी वजह से जो माइग्रेशन हो रहा है विलेजेस से वो ना हो और वो वहीं रह के वो सारी चीज़ें कर सके जो वो करने के लिए सिटीज़ में जाता है। Okay. So what are some of your milestones that you've achieved, and why do you think it's critical for your venture to achieve those milestones? Okay, so the first one from which this idea was came, so there was one competition in a university called Shodh or Research Conclave. So it was held in 2024. In that event हमने ये जो प्लेटफॉर्म है इलाव इसको प्रेजेंट किया था और वहाँ पर अभी सिक्योर 3rd रैंक. आफ्टर दैट इन आवर ओन यूनिवर्सिटी वी हैव बीन इंक्यूबेटेड एज आई सेड, एंड वहाँ पर हमने 2.5 का फंड रेस किया. आफ्टर दैट वी वेंट ऑन शोध शिखर फॉर नेक्स्ट स्टेज इन भोपाल. सो इन RNTU यूनिवर्सिटी वी रिप्रेजेंटेड आवर यूनिवर्सिटी ऑल्सो एंड वी प्रेजेंटेड आवर स्टार्टअप ऑल्सो. After that, recently 2 weeks before only, we have been, we have signed agreement with SDA University in Dantewada, which is NABARD assisted. So there also we have been incubating. Then currently we are thinking to work with KVKs and most probably it will be. So that's all. Okay. What are the challenges that you faced up till now? So basically the farmers' mindsets are very static. They don't want something new in their life. जो हो रहा है वो वही करना है, किसी को 200 रुपये ज़्यादा दे के वो चीज़ नहीं करनी है, तो उनको स्ट्रगल करना, थोड़ा हार्डवर्क करना, उस पर वो जा रहा है. अगर हम कस्टमर की बात करें तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. और अगर हम फंड रेज करने की या पिच करते हैं कहीं पर, वहाँ कर अगर हम प्रॉब्लम बोले तो वहाँ का ऐसा है कि आर डायरेक्ट कॉम्पिटिशन इज़ गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट डजंट लाइक दैट व्हाट वी आर डूइंग, बेसिकली उनको नहीं अच्छा लगेगा कि हम उनकी जगह उनका काम करें. सो यही है सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो. And how are you planning to overcome these challenges? What have you done already and what are you planning to do further? Yeah. So for static mindset of farmers, what we are doing is we are going physically on ground. So recently we have visited APMC Unja, APMC Mehsana. Currently we are going in Khewa also for village visit. तो वहाँ पर हम फार्मर से बातचीत कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो दे आर कन्विंसिंग कि हाँ ये सारी चीज़ें अच्छी है, हमारे लिए ही है और हमारे हित के लिए ही है. टू कन्विंस गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स व्हाट वी आर डूइंग इज रिसर्च पेपर्स वगैरह जो भी होते हैं, रिपोर्ट्स होती है नीति आयोग की या फिर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो रिपोर्ट्स होती है,
उनका डेटा पुट करके जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो शो कर रहे हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है और ये ग्राउंड पर है, इसी की वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं। Okay. And what's your how old are you all in terms of like 3 founders that you said, and what's your team size like? We are 3 co-founders. Myself, Abhishek Paliwal, I am co-founder and CEO of Pilaf. With 2 other co-founder. One is Daria Patwa, she's CFO of our company. She is, I think, 18 and I'm 19. And one more co-founder is there, Komal Chaudhary. She's CMO of our company and she's also 20. Okay. That's really inspiring for, young people like you all starting such a venture. So what's that one gap that you all are trying to fill when it comes to, making it progressive for farmers? And what's that one thing you still need to crack, or you still need to get access to make your venture more scalable? So the gap which I think that we are facing, means we have, filled, is the supply chain which, farmers are facing in tier 2 and tier 3 cities. Mostly the things which are done in tier 1 cities are done, not in tier 2 and tier 3 cities. Can you give a few examples of the cities that referring to? Yeah. So if something is done, so like अहमदाबाद में जो होगा वो अहमदाबाद में होगा, बट अगर मैं बात करूँ कि महसाना में भी कोई चीज़ हो रही है तो महसाना में तो हो गई, महसाना के अंदर अब उसके अंदर भी विलेजेस है, खेरवा है, कुकर्स है। तो हम एक बात बोलते हैं कि गांव के अंदर गांव है, तो जो गांव के अंदर गांव है वहाँ तक कोई पहुँचता नहीं है। वहाँ पर ना शॉप्स होती है कि कहीं से वो कोई फार्मिंग की कोई चीज़ें खरीद सके, उनको जाना पड़ता है ऑल द वे टू महसाना और ऑल द वे टू कड़ी कलोल, जो बहुत दूर पड़ जाता है, 80-90 किलोमीटर्स दूर पड़ता है। तो वो उनका जो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, जो बार बार जाना है, वो सारी चीज़ें हम फिल करते हैं। Okay. And what's that one gap you still, what's that one thing you still need to fill in the gap and scale your company? मेनली इसके अंदर जो डिलीवरी का जो होता है कि A to B, B to C हमको कोई चीज़ भेजनी है, तो हाउ वी विल डू दैट। तो उसके लिए जो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि ऊबर हो गया या फिर स्विगी हो गया या जोमेटो हो गया, तो उनका जो सप्लाई चेन है जो वो मैनेज करता है, उसको समझना, उनको सीखना और उसको एक तरीके से हमारे स्टार्टअप के हिसाब से क्रिएट करना, वो सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी है अभी। तो वही अभी हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि अगर हमको A to B, B to C और C to D अगर जाना है तो हम ये पॉइंट पे कैसे जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा अभी हमारे लिए प्रॉब्लम है। Okay, understood. And anything that you'd like to tell the young people who are watching this? What's your motivation, inspiration? What you can talk about the challenges you faced in your personal life that you're trying to solve, and how you're also helping the country sort of grow from this. Okay, so to inspire someone from my age only, so I have some words. तो जब तक मैं स्कूल में था तब तक आई वॉज नॉट लाइक दैट। मैं खुल के बोल नहीं पाता था, मैं कोई काम के लिए आगे नहीं रहता था। आई वॉज पीछे बैठना, अच्छे मार्क्स आ गए, C ग्रेड B ग्रेड आ गया, ठीक है, अब और आगे जाना नहीं है। अभी कॉलेज में आने के बाद थोड़ा कम्पिटिटिवनेस बढ़ गया है, अब कहीं भी जा रहे हैं तो यूँ लगता है कि नहीं जीतना ही। अभी कोई कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ पर भी लगता है कि फर्स्ट नहीं आया तो अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बहुत सारे बच्चे, उनका माइंडसेट कैसा हो गया है कि जितना हो गया उतना सही है, उससे ज़्यादा मेरे को नहीं करना है। अगर ठीक है C आया तो C भी चाहिए, 5 CGPA बन गए, खुश है, क्या करना है, पापा का बिजनेस है, उसी से काम चलाएंगे। तो उनको वो चीज़ देखनी चाहिए कि वो बिज़नेस कब तक चल जाएगा, इस पीढ़ी तक तो चल जाएगा, उसके बाद क्या होगा, कुछ नया। तब अब हर चीज़ के अंदर गवर्नमेंट आगे नहीं आ सकती है। जब सिविक सेंस की बात करते हैं तब हम जैसे स्टार्टअप भी उसके अंदर आते हैं, हम जैसे एंटरप्रेन्योर या फिर हम जैसे यंग इनोवेटर्स जो होते हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारी कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर हम नहीं डाल सकते। गवर्नमेंट आपको रोड बना के दे देगी, गवर्नमेंट आपको बैरिकेडिंग करके दे देगी, आप उसके ऊपर पान थूकोगे तो वो कैसे चलेगा।